کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 3 آیت مقدسہ، یہ جواب خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس کو دیا۔ نیکودیمس ایک فریسی ہے اور شرع کا عالم ہے، ایک پڑھا لکھا شخص ہے۔ ایک تو وہ شرع کا عالم ہے، اور اس کے بعد وہ یہودیوں کی جو عدالت ہوتی تھی اس کا بھی وہ رکن ہے، ممبر ہے، جو ایک بڑی اہم عدالت ہوتی تھی، یعنی شرعی عدالت سادہ الفاظ میں، اس کا بھی وہ رکن ہے۔ اور یہودیوں میں اس کا ایک نام ہے، بڑا مقام ہے، ایک پبلک فگر ہے نیکودیمس۔ اور یوحنا کی انجیل کا 3 باب جو ہے، یہ یوحنا کی انجیل کا مرکزی باب ہے، کیونکہ انجیل مقدس کی سب سے مشہور آیت جو ہے کہ خدا نے دنیا سے، بول دیں، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی ایمان لائے بلکہ ہمیشہ کی زندگی، اے کلام خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی شخص نال کیتا ہے، کوئی بڑی بھیڑ نہیں ہے، کوئی بڑا مجمع نہیں ہے، اور جس شخص کے ساتھ یہ کلام ہوا ہے اس کا نام نیکودیمس ہے، ایک شخص کے ساتھ۔ نیکودیمس شرع کا یعنی شریعت کا عالم ہے، اور اس وقت نہ صرف یروشلم بلکہ جہاں جہاں دنیا میں یہودی رہتے تھے لوگ نیکودیمس کے نام سے واقف تھے۔ اور یہ نیکودیمس وہی شخص ہے، یاد رکھیے گا، کہ جب یسوع مسیح نے صلیب پر کفارہ دے دیا، جان دے دی، تو 2 شخص مین ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کی باڈی کو لیا۔ پہلا شخص اس کا نام یوسف ہے، اور وہ یسوع مسیح کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں سے چھپا ڈرا ہوا تھا۔ وہ جاتا ہے اور یسوع مسیح کے بدن کو لیتا ہے، مانگتا ہے کہ میں لے کر جاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد نیکودیمس بھی ساتھ مل جاتا ہے، کفن اور سارے مسالے اور خوشبو جات جو ہے وہ نیکودیمس لے کر آتا ہے۔ 50 سیر لکھا ہے، more than 50 kg، 100 پاؤنڈ کے قریب قیمتی مسالے جات۔ 19 باب یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ لے کر آتا ہے، اور پھر کفن بھی وہ لے کر آتا ہے، قیمتی کفن۔ اور یہودی شریعت کے مطابق یسوع مسیح کو دفنایا جاتا ہے، اور نیکودیمس کا اس میں بڑا کردار ہے۔ یوحنا 3 باب میں وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، پر رات کی تاریکی میں چھپ کر آتا ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہے، کیونکہ یہودی اس کے خلاف تھے۔ اس کو ڈر ہے، میں مشہور آدمی ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہ لے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، میری ذات پہ انگلی آ جائے گی۔ یوحنا کی انجیل 7 باب میں جب یسوع مسیح پر الزام لگتا ہے کہ کسی طریقے سے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ مسیح کے خلاف تھے، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ کیسے تیسے کر کے یسوع کو پکڑا جائے، اور وہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ نیکودیمس تک جب بات پہنچتی ہے، کیونکہ وہ ان کی شرعی عدالت کا رکن تھا، اور وہ بڑی مصلحت کے ساتھ ایک بات کرتا ہے، کہتا ہے ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر الزام لگا دیں اور اس کی سنیں ہی نہ، اور وہاں سے بھی بات جو ہے پھر نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ 7 باب میں وہ یسوع کی حمایت کرتا ہے، 19 باب میں وہ خداوند کے بدن کو لے کر دفنانے کے لیے لے کر جاتا ہے یوسف کے ساتھ، پر 3 باب میں وہ چھپ کر یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہے، اور وہ جانتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کا یقین ہے
کہ یہ جو معجزے خداوند یسوع مسیح دکھا رہا ہے یہ خدا کی قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ آئیے ذرا پہلی آیت مقدسہ سے دیکھیں۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیقودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو، جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ اتنی گل وہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ خدا یسوع کے ساتھ ہے۔ اب وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے کچھ ایسی سمجھ آ جائے کہ میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں، مجھے کچھ ایسا پتہ چل جائے کہ میں خدا کے حضور مقبول ٹھہر جاؤں۔ یہ اس کی جستجو ہے۔ امیر شخص ہے، مشہور شخص ہے، شرع کا عالم ہے، یسوع سے ملنے کی خواہش اس کے دل میں ہے، اور اس نے پلان کیا میں چھپ کر جاؤں گا یسوع کے پاس، اور وہ پہنچ جاتا ہے۔ تیسری آیت میں لکھا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور نیقودیمس کا جواب ذرا سننا۔ نیقودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب تک بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نویں گل، دو گلاں پہلا ہی پھس گئے۔ پہلا انہوں کیا گیا کہ جدوں تک کوئی نویں سرے تو پیدا نہ ہوئے خدا دی بادشاہی سے داخل، وہ ادھر سوچ رہا ہے، وہ انسانی عقل سے سوچ رہا ہے، وہ اپنی حکمت سے چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے کہ یہ کیسا شخص ہے، اس کی سوچ کیسی ہے۔ یہ لاجک نہیں بنتی کہ کوئی شخص دوبارہ سے اپنی ماں کے پیٹ میں جائے اور وہ پھر پیدا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ادھے وہ اتھے پھسیا ہے، سمجھدار بندہ ہے، عقل مند آدمی ہے، لیکن یسوع کی بات اس کو کوئی سمجھ نہیں، اوپر سے گزر گئی ہے۔ استاد آدمی ہے، کیونکہ روحانی گلاں روح نالی سمجھا جاندیاں نے۔ جب تک روح ساتھ نہ ہو بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں وہ غافل رہ جاتے ہیں۔ اے گل انہوں سمجھ نہیں آ رہی۔ یسوع مسیح نے ایک گل اور کر دیتی، وہ گل کیڑی ہے کہ جدوں تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل۔ دو گلاں ہو گیا، ایک تو نئے سرے سے پیدا ہونا ہے اور دوسرا پانی اور روح سے پیدا ہونا ہے، پھر کوئی بندہ جا کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایک اور بھی شخص یسوع مسیح کے پاس آیا، اس نے سوال کیا، اے خداوند میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، اور یسوع نے انہوں شریعت دیا گلاں دسیاں، دا یکی دے، روزے رکھ، سب کچھ کر۔ انہوں نے کہا میں سب کچھ کرتا ہوں، اور پھر خداوند نے کہا اچھا یہ بھی کرتا ہے تو پھر تو اپنا مال غریبوں میں، تو پھر کوئی گل۔ پر نیقودیمس نو یسوع نے شریعت دی کوئی گل نہیں دسی، کیونکہ وہ انہوں پہلا ہی بڑا علم سی۔ یسوع مسیح نے انہوں ایسی گل دسی جیڑی انہوں سمجھ نہیں سی آ رہی، اور آج بھی اے گل اگر کسی نو دسیے تو لوگ نہیں سمجھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟
कौन खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है जो नए सिरे से पैदा हुआ है। अब नए सिरे से वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो बड़ी खैरात करता है, जो बड़े नेक काम करता है। वो शख्स जो है वो नए सिरे से उस वक्त तक पैदा नहीं हुआ जब तक उन्हें अपना दिल, अपनी जिंदगी खुदावंद हुजूर अंडेल नहीं देती, जब तक उसने अपना आप खुदावंद को नहीं दिया। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग की नेकियां हमें नजर आती हैं, पता चलता है यह शख्स नेक है, लेकिन अंदर के भेद है वो सिर्फ खुदा जानता है कि यह शख्स नेक है कि नहीं है। यह सिर्फ रूह जानता है। मजहब हमें बचा नहीं सकता। मजहब हमें सिर्फ तहरीक तो देता है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये करे, लेकिन जब तक हमारा दिल नया ना हो, जब तक हमारी सोच नई ना हो, जब तक जिंदगी में बदलाव ना हो, जब तक आप बदले हुए ना हो। और बहुत दफा मैं आपको सच बता रहा हूं बेटे, एक तो माइक आपने मुझे गलत दिया भाई। बहुत दफा, अब याद रखें, कोई बात नहीं, जब असी उस्मान दी बादशाही से जावांगे, मेरा ईमान है हम सब जाएंगे, और आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेक काम करने वाले मशहूर लोग शायद वहां ना हो, लेकिन जिनको दुनिया नहीं जानती पर खुदा उनको जानता है, पर उन्होंने अपना दिल खुदावंद को दिया। वो छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं, आजिज़ है, इनकिसार ही। आज बड़े मजहबी लोग अपने बड़े बड़े इश्तिहार चलाना पसंद, अपनी तारीफ बताना पसंद करते हैं, यहां तक कि पादरी हजराता ने हाथ वेखने शुरू करते हैं, मुस्तकबिल का हाल बता रहे हैं। ये हाथ नहीं दस देते, वैसे अपने तजर्बे नाल टेवे लाई जाते हैं, भैन जी तुहानू इंज 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 इंज। पीछे टेंशन क्या है? वो मशहूर हो जाए। लेकिन जो नए सिरे से पैदा हुआ है वो कैसा शख्स है, और जो रूह और पानी से पैदा हुआ है वो कैसा शख्स है। आइए जरा देखें कि क्यों ये यीशु मसीह ने बात कही। हिजकिय्याह 36 बाब को जरा खोलिएगा। हिजकिय्याह की किताब जरा खोले। जीसस, पच्चीस आयत को जरा देखिएगा। हिजकिय्याह चैप्टर नंबर 36 आयत नंबर 25 खुदा के कलाम में लिखा है, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा। जिन्हां दे कोल है बाइबल खोलो जरा, कि क्यों खुदावन यीशु मसीह ने निकोदेमुस ਨੂੰ ਇਹ किया कि जदों तक कोई शख्स पानी और रूह से पैदा नहीं होगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल। असल में खुदा यीशु मसीह ने हिजकिय्याह 36 बाब को कोड किया है, और उसमें क्या लिखा है? तब तुम पर साफ पानी, क्या लिखा है जी? छिड़कूंगा, और तुम पाक, सिर्फ पाक नहीं, पाक साफ होंगे, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा, और नई रूह तुम्हारे बदन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल, बोल दे, डालूंगा, और गोश्तीन दिल तुमको अनायत नरम दिल, सख्त दिल को निकालूंगा। पहले क्या मैं करूंगा? तुमको नया दिल बख्शूंगा, और नई रूह तुम्हारे बदन में डालूंगा।
और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को और गोश्तीन दिल तुमको, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल और उनको बजा लोगे। जब यीशु मसीह ने निकोदेमुस से यह कहा कि कोई शख्स जब तक पानी और रूह से पाक ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, अब उसको क्यों ये यीशु मसीह ने कहा, अब उसको रेफरेंस बताने की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह को निकोदेमुस के साथ हवाला दसन की जरूरत, वो शरा का आलम है और वो लोग कलाम के हिस्सों को एक एक आयत को हिफ्ज करते थे, और जैसे ही खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही, निकोदेमुस नो दैट कि ये क्या बात कर रहा है। और काश कि आज कलीसिया इस मकाशफे से वाकिफ हो जाए और रवायती अंदाज को छोड़कर सही मायनों में यीशु की पैरवी करे। पर हिस्केल के मुताबिक खुदा कह रहे मैं तेरा सख्त दिल कढ़ांगा, ओदी जगह ते केड़ा दिल रखांगा, गोश्त मतलब नरम दिल, सख्त दिल जो लोहे का बना हुआ है, जो कलाम सुनता रहता है और जिंदगी यूं की तू चलती रहती है, और फिर एक काम नहीं करेगा, दूसरा काम और करेगा, मैं अपनी रूह को तुम्हारे बातन यानी बदन में डालूंगा, और दो जो काम हो जाएंगे तो फिर खुदा की कह रहा है की होएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं यूं कहूं कि खुदा कह रहे हैं मैं ताड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट करांगा, ऐसा सॉफ्टवेयर ताड़े बदन च पावांगा कि तुसी खुशी दे नाल मेरी तमजीद, मेरे अहकाम, मेरी पैरवी करोगे, बशर्ते के हम खुदा को अलाउ करें कि खुदा मेरा ऑपरेशन करे और खुदा मेरे बातन में नई रूह डाले। जदों तक असी खुदा नू अलाउ नहीं कर दे फिर हमें गर्मी में बैठने का कोई फायदा नहीं। बड़ी आला प्रशंस हमने सुनी है। जब तक हम खुदा को अलाउ नहीं कर रहे कि वो हमारे दिल में, हमारे दिल को तब्दील करे, हमारी रूह को तब्दील करे, चेंज करे, तो इसका मतलब है जदों तुसी अच्छा काम करोगे, जदों तुसी खुदा दी पैरवी करोगे, जदों तुसी खुदा दे अहकामात नू मनोगे, जदों तुसी खुदा दा खौफ मनोगे, तो तुसी नहीं मान रहे ओ खुदा फिर ताड़े को मनवा रहे है। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि उसने आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। जैसे ही अपडेट की ऑप्शन आती है फोन के अंदर, फोन वही होता है पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। जिस तरह से पहले फोन हैंग हो रहा सी, मान नहीं सी रहा, पर हुण फोन तेजी नाल चल रहा है, आपकी कमांड को अबेक कर रहा है। सेम तरह से खुदा भी साडा सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहता है और साडे सख्त दिल नू कढ़ के ओदे विच गोश्तीन दिल नू रखना चाहता है। और जब आपका गोश्तीन दिल होगा, जबकि आपके अंदर खुदा की रूह होगी। कल हम कामरा से आ रहे थे और भाई नदीम गाड़ी चला रहे थे, तो मैं इनको गवाही सुना रहा था और मैं इनको बता रहा था, मेरी गवाही यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है कि मसीह में आने से पहले मेरी जिंदगी कैसी थी। मैं अपनी कमियां कमजोरियां लोगों को दिलेरी के साथ बताता हूं, क्योंकि मेरा यकीन है कि ऐसा करने से मेरे खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। आमीन। ऐसा करने से मैं घटूंगा और वो बढ़ेगा।
लेकिन ये उस वक्त होता है जब साडा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका होता है। फिर सानू अपनी टेंशन नहीं होती, हमें अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती। हमारी कोशिश ये होती है मेरे किसी एक्ट से, मेरी किसी टेस्टमनी से, मेरी किसी गवाही से मेरा यीशु जलाल पाए, मेरा मनजी ऊंचा हो जाए, मेरे यीशु की शान मेरी जिंदगी में बढ़ जाए। लोग किसी भी अमल को देखकर, मेरे किसी अमल को देखकर मेरे खुदा की तारीफ करें। जब ਤੁਹਾਡਾ सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, जब आपके अंदर सख्त दिल खुदा निकाल कर उसके अंदर गोश्तीन दिल डाल देगा, फिर ताड़ी ईगो अहम नहीं होएगी, फिर साड़ी अना अहम नहीं होती, फिर मेरी जात अहम नहीं है। फिर आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि जब खुदा का बंदा कहता है मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में, तो जदों मसीह जिंदा होएगा तो फिर लोग ऑटोमैटिकली वेख के तुसी चलदी फिरदी अंजील बन जाओगे। लोगों नू तुहाडे अंदरों यीशु नजर आएगा। और यही मेरा यीशु चाहता है कि कलीसिया जो है जमीन पर चलती फिरती अंजील बने। अच्छा, एक शख्स ने ऐसा किया, असी गवाही देंदे हुए बड़े शर्मांदे हैं, हम डरते हैं लोग क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। एक अंजील में एक ऐसा शख्स है जो नबी का बेटा है, जो पेशन गोइयों के मुताबिक पैदा हुआ, और उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वो कहता है कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के, ओए होए 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 कितना नीचे गया है। फिर वो कहता है कि जरूर है कि मैं घटूं और वो, और आपको पता ही मसीह ने उसको नाम क्या दिया? खुदावंद ने फरमाया जितने औरतों में से पैदा हुए हैं यूहन्ना उन सब से बड़ा है। आमीन। हम चाहते हैं लोग हमारी तारीफ करें, पहला यीशु की तारीफ करके देखो, अपने आप को कम करें और यीशु को बढ़ाएं, लोग ऑटोमेटिकली ताड़ी तारीफ करना शुरू कर देंगे। हर शख्स एप्रिसिएशन चाहता है, लोग उसको देखें, उसकी वाह बल्ले बल्ले करें, लेकिन जदों तक साड़ी अटेंशन सिर्फ साड़ी जात है कख नहीं होने वाला। नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, और ये एक मकाशवा है। आज भी हम लोगों को बैप्टाइज कर रहे हैं, लेकिन ये एक हुक्म है, ये एक पाक रस्म है। ये जरूरी है कि जो शख्स मान ले वो बपतिस्मा ले, लेकिन ये शुरू है। और बहुत दफा लोग जब कहा जाता है, बताया जाता है, सुनाया जाता है, लोग अपनी अकल से सोचते रहते हैं निकोदेमुस क्या कर रहा था, उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो खुदावन ने अगली गल की थी उदों समझ गया सी कि मैनू हुण पिछे जाके इहदा मतलब की है। उसको पर समझाने की जरूरत नहीं थी, पर यीशु मसीह उसको आगे तक लेकर गए हैं। फिर उसको गिनती का हवाला दिया है कि जिस तरह मूसा ने बियाबान में सांप को ऊंचे पर लटकाया, जरूर है कि इब्ने आदम भी दुनिया के गुनाहों के लिए ऊंचे पर लटकाया जाए, ताकि जो कोई उस पर निगाह करे वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। और फिर आगे जाके यूहन्ना 3:16 हमें नजर आती है, जो मेन मर्कजी आयत है अंजील की, और पूरा अंजील का पैगाम खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमुस को सुनाया, और निकोदेमुस समझ गया। शुरू में वो थोड़ा सा खौफजदा था, पर 19 बाब में यीशु के कफारे के बाद, जान देने के बाद, फिदिया देने के बाद वो पब्लिकली सामने आया है। अब उसका कोई टेंशन नहीं है, वो जान गया है कि जिस मकसद के लिए आया था उसने वो पूरा किया, जो कलाम उसने निकोदेमुस के साथ किया था कि जरूर है कि इब्ने आदम ऊंचे पर। और जब यीशु ने जान दे दी थी, उन्हें समझ आ गई हाँ यीशु ने एक क्यासी, और जो कुछ उसने कहा है वो करके दिखाया है। और उसके बाद का कलाम भी उसको याद होगा, उसने कहा था मैं जिंदा होगा।
कितनी बड़ी शान और इज्जत की बात है कि वो अपने पैसों से इतना कीमती मसाले जात खुशबूदार चीजें लेकर आता है और यीशु के बदन पर मलता है और कीमती कपड़े के साथ उसका बदन लपेटता है। शागिर्दों को बहुत खुशी हुई जब यीशु मसीह जिंदा हुआ। जरा अंदाजा करें निकोदेमुस की खुशी का क्या हाल होगा। हालेलुया, वो कितना खुश होगा। और उसका दूसरा दोस्त यूसुफ जो है, जिसने जाकर यीशु मसीह के बदन मुबारक को मांगा पहले तो उससे, वो किस कदर खुश होगा, क्योंकि अब निकोदेमुस को नई पैदाइश का एक्सपीरियंस हो चुका है। काश आज कलीसिया इस समकाश्य से वाकिफ हो जाए और रवायती तरीका से, रवायती तर्ज जिंदगी से निकलकर सही मायनों में मसीही जिंदगी को इख्तियार करे। आपकी जिंदगी में शादमानी, तसल्ली, फतहमंदी के साथ आप जिंदगी गुजारेंगे। अगर नए सिरे से पैदा नहीं हुए, मत लाएं टाइथ भी, हदिया मत लाएं, मैं आपको बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं है। अगर जिंदगी तब्दील नहीं ना करें, वर्शिप क्या फर्क पड़ता है। आप गीत गा रहे हैं, फिर मजे ले रहे हैं। और म्यूजिशियनों को मैं बहुत दफा देखता हूं, बाहर जाकर सीटें बड़ा नशे तमाशे लोग करते, जब मसबे पे आते हैं पता लगता है बड़े रूहानी लोग हैं। कोई फायदा नहीं। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। और ये एक रवायती चर्च नहीं है, यह रवायती खादम नहीं है, ये एक रवायती समझबा नहीं है, ये लोगों को एंटरटेन करने वाली जगह नहीं है, ये यीशु के जलाल के लिए जगह बनाई गई है। और जरूर है कि हम अपना दिल यीशु को पेश करें, जरूर है कि हम संगीन दिल को यीशु को दे दें, ताकि यीशु हमें नया दिल, गोश्तीन दिल अता कर दे और हम खुली आंखों से, रूहानी आंखों से अपने मसीहा का नजारा करें, दीदार करें। याद रखें, जब तक निकोदेमुस अकल से सोच रहा था उसको समझ नहीं आ रही थी। और बहुत दफा हमारी अकल भी हमें पीछे ले जाती है। जब आप अकल से सोचते हैं आप खुदा की ताबेदारी नहीं कर सकते। और बहुत से अक्लमंद, मैंने पिछले 2-3 महीनों से देखा, बहुत से अक्लमंद चर्च में हदिया लाना भूल गए हैं, छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि मैं प्रीच नहीं कर रहा। वो समझते हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत अक्लमंद हैं, हमने बहुत पैसा बचा लिया। निकोदेमुस भी अकल से सोच रहा था। एक सेकंड के लिए जरा गौर करें, जब 2 दमड़ियां जिस औरत ने डाली हदिया की थैली में, और कलाम में लिखा कि यीशु उसको देख रहा था, उस हदिये की थैली को देख रहा था। वो डालने से पहले उसके दिमाग में कितनी जंग हुई होगी। अकल उन्होंने कहती होगी, ऐ 2 दमड़ियां ने, शायद मेरे आने जाने का किराया है, शायद मेरे बच्चों का 1 या 2 वक्त का खाना है, या 1 हफ्ते का खाना है। 2 दमड़ियां मेरे पास यही है, क्योंकि कलाम में लिखा है उसके पास वही था जो उसने डाल दिया। कितनी जंग उसके दिमाग में हुई होगी। और आज भी जब आप हदिया देते हैं, इब्लीस आपके दिमाग को शेक करता है। और मैं बहुत दफा देखता हूं, सुनता हूं, आजकल साढ़े हालात ठीक है, इसलिए हम हदिया, जरा मैं आपको बताऊं, वही वक्त होता है खुदा को देने का जब आपके हालात साजगार है। वही वक्त होता है प्रशंसा करने का, वही वक्त होता है कि आप खुदा को ऑनर करें, वही वक्त होता है कि खुदा आपको देख रहा है, अब तू मेरे साथ कैसा चलता है। अय्यूब की जिंदगी पर जब हम नजर डालते हैं, खुदा आप देखना चाह रहा था अब कैसा चलता है। जब सब ठीक था तो बड़े हदिये, शुक्रगुजारियां, रोज कुर्बानियां होने की कर दे, वो फिर भी खुदा की तज़ीम करता रहा और खुदा ने उसको डबल दिया। खुदा हमारे हालात से भी वाकिफ है। और जब हम अपनी अकल को मुस्ख कर, अपनी अकल पर गालिब आकर अपने खुदा की सताइश करते हैं,
तो फिर खुदा का हाथ हमारी जिंदगी पर आता है, वो हमें ब्लेस करता है। और ये अमल उस वक्त होता है जब हम अपने संगीन दिल को निकाल चुके होते हैं और गोश्तीन दिल को अलाउ करते हैं कि हमारे बदन को खुदावंद दे। कई सालों से हम इबादत कर रहे हैं और खुदा के फजल से करते रहेंगे, लेकिन अगर हम मसीह के पैगाम को ना समझ पाए, यीशु की तालीम को ना समझ पाए, हमेशा की जिंदगी के वारिस ना बन पाए, तो क्या फायदा। मसीह ने कहा अगर कोई इंसान सारी दुनिया को हासिल करे और हमेशा की जिंदगी को खो दे तो क्या फायदा। और ये इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। सिर्फ मुकम्मल तौर पर सोचना है दिल से और दिमाग से, गॉड इनफ। इब्लीस को झिड़कना है कि अब तेरा जोर मेरे दिमाग और दिल पर नहीं चल सकता, मैं अपने खुदा का बेटा और बेटी हूं और मैं मुकद्दस कौम का हिस्सा हूं, मैं उस भीड़ का हिस्सा हूं जो खुदा की प्रस्तुत कर रही है आसमान के ऊपर। और मेरा वतन ये नहीं है बल्कि आसमान है। फैसला करना होता है इंसान ने। जब आप ये फैसला कर लेंगे और फिर आपके अंदर आजिज़ी और इंकिसारी और मोहब्बत और दूसरों के लिए हमदर्दी और पाकरू आपके अंदर से अल्टीमेटली नजर आएगा। बहुत दफा लोग समझते हैं कि जब लोग गैर ज़बानों में दुआ करते हैं तो वो रूहानी हैं। ये बड़ा क्रिटिकल है। लेकिन अगर उनकी जिंदगी में रूह के फल नहीं है, दे आर नथिंग। वो ठनठनाते पीतल और झनझनाती चाच। नए सिरे से पैदा होना, नए सिरे से पैदा होने के मुकाशफे को जानना और समझना, अगर ये पैगाम जिंदगी में नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। अगर एक भी बात आज समझ आई है, मैं समझ रहा हूं कि गर्मी है, तो शुक्रगुजारी करना शुरू करें खुदा की। जीसस हालेलुया। आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे थोड़ी देर के लिए। जीसस हालेलुया। रबा लाज़रा कबा शिंदर